Hello friends, in this video I will share with you the very important knowledge about the PE ratio, which is the very important and fundamental valuation parameter of the entire stock market. And after watching this video I can guarantee you that you will be able to recognize why all the shares are trading at different P's and which are value buys and which are growth shares and etc. So just do not miss this video till the end. Now first of all I will like to share a very important point that what is the mistake made by most of the retail investors. Okay, they think that a high PE stock it will come down, okay, and a low PE stock should be bought into so that it will go up in the future. Accordingly, they think that the low PE stock is a value buy. For example, ITC, L&T, SBI, all these are trading at the low PE, but which is a value buy. Okay, that we will you will learn by the end of this video. Okay, so accordingly, it is generally thought that the high PE stock is very manipulated. Okay, for example, if a stock is trading at 70p or 100p, generally you will see on the TV channels that analysts they will say that just stay away from such manipulated stocks. Okay, or so this may be true to some extent. Okay, some, but this is not universal because P ratio is not about the number, it is entirely different thing, and in this video you will get to know by the end. So what is the reality? See, intrinsic value of any stock or any business is not dependent on the P ratio exclusively, but it is the discounted value of its future cash flows. So for example, I will explain you with the help of two examples, L&T and ITC. Okay, so both of these are trading at a level very low valuation. So you can how much conviction can you predict the earnings of L&T versus ITC, because if you say if you think you can very easily guess the predictability of earnings in the case of ITC, whereas in case of L&T it is not as much predictable because it is based on the execution of the projects. Hence a low PE ratio stock may provide higher value. Okay, both of these stocks are providing you higher value, but there is no indication of future cash flow in the case of L&T. However, ITC there is a predictability of future cash flows. So this is a value buy among these two. So likewise, higher PE stock it can also be justified by expected higher earnings in future, so that with each passing year stock gets cheaper. For example, TCS was trading at a very high P for last 2 to 3 years, and it came to very basic 17 P, which is the lowest for last 10 to 15 years in during the corona fall. So it was P at higher trading at higher P for last 2-3 years. In the expectation, market expected that the earnings will be increasing, and hence if the what is P ratio, that is price upon earnings. So if earnings increase, okay, if the earnings increase, then price will automatically will be justified. Okay, P ratio will be if earnings you increase, P will be down, P will decrease. So now we will start the drivers of the P ratio. So first of these is the growth rate. Okay, what is the growth rate? It refers to the EPS growth of the companies. See, just do not confuse it with the net profit growth. We generally watch the balance sheet and we see the net profit growth, but in actually you should see the what is the net EPS growth, because EPS is the what shareholders get. This is the what earnings per share. This is the part of shareholders' wealth. Okay, they do not get the net profit. They get the EPS. So markets also the markets prefer the sustained revenue growth. Okay, मार्केट्स को क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत पसंद है, सबसे अच्छा होता है रेवेन्यू ग्रोथ में, क्योंकि ये क्या है, आप इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते अकाउंटिंग मेथड से. ओके, इट इज़ अ मोर रोबस्ट इंडिकेटर ऑफ द ट्रेंड. So generally what happens, let us say if a stock is or a business is having CAGR growth of 20%, that means इसका P जो है 20 होना चाहिए. ओके, इट इज़ सिंपल एज दैट, एंड इस रेशियो बोलते हैं PG रेशियो. और अगर P 20 से ज़्यादा है तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, इसका मतलब स्टॉक एक्सपेंसिव है. और P लेस देन 1 है, PG लेस देन 1 है, तो इसका मतलब स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन. हाउएवर ये एक अलोन ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जिसकी वजह से आप जो है पी को परफेक्टली आप डिफाइन कर सकें. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर पी जी किसी स्टॉक का लेस देन 1 है तो आप उसको देखें ही ना बिल्कुल, या उसको परचेज ही ना करें. ओके, और एक चीज़ और इसमें देखिए ग्रोथ रेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी लो ग्रोथ कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल 15% से जो ग्रो करने वाली होती हैं, ओके, दे विल यू विल फाइंड इट दे आर ट्रेडिंग एट अ वेरी लो पी. फॉर एग्जांपल उससे भी जो है ग्रोथ रेट से भी कम पे पी, या फिर कह सकते हैं इनका पी जी जो है लेस देन 1 होता है. बट हाई ग्रोथ कंपनी जो होती है, जैसे जिसका 30% ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस जो ओके, उसका पी रेशियो जो है 35 से ज़्यादा ही मार्केट देगा.
या 30 से उसकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा रहता है, जैसे मतलब कि PEG रेशियो उसका 1 ही होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी प्रीमियम, क्योंकि 15% जो ग्रो करती हैं कंपनियां बहुत सारी मिल जाएंगी, बट ऐसी बहुत ही फ्यू कंपनीज हैं जो 30% या 25 या 35% से ग्रो करती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी प्रीमियम और लिमिटेड मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, डीवीज लैब, डिक्सन, FL, ऑल दीज जो करंट मार्केट सिनेरियो में ये सब जो बुल रन इनका आपने देखा है वो इसी वजह से है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो फ्यूचर में मार्केट को इतनी अर्निंग्स जो है प्रिडिक्टेबल होके मिल रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर होता है पी रेशियो का एंट्री बैरियर्स। ओके, सो कंपनीज जिनका एंट्री बैरियर्स होता है उनको मार्केट जो है हायर प्रीमियम देता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर और फार्मा कंपनीज जो है वो उनमें सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है। और एक अनदर एग्जांपल है, जैसे एक स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज, जो इनको गवर्नमेंट लाइसेंस मिला हुआ है एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स बनाने का, तो ये एक सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर, तो इनका भी पी हमेशा हाई रहता है। इसी तरह बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ये सब क्या है, डेटा कंपनी है दोस्तों, ये सब जो है डेटा कलेक्ट करके अपने बिजनेस में उसका यूज़ करती हैं, तो इनके पास जितना हैवी डेटा बैंक है कि वो एक तरह से एंट्री बैरियर एक्ट करता है बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए। थर्ड फैक्टर होता है देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ओके, मार्केट्स को हमेशा वही कंपनियां पसंद आती हैं जिनकी आप जो है फोरकास्ट कर सकते हैं 20%, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 10 ईयर्स तक अगर कोई कंपनी 20% तक ग्रो कर सकती है, ये मार्केट जो है वेरी सर्टेन वे में बता सकती है, तब तो वो मार्केट को उसको जो है प्रीमियम मिलेगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल जैसे एशियन पेंट्स हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया, पर अगर एक साल भी 40% ग्रो करेगी कंपनी, उसके बाद का कोई पता नहीं है, तो ऐसी कंपनियों को मार्केट हाई प्रीमियम नहीं देता है। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर इज रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल रेशियो विच डायरेक्टली कंसर्न द शेयर होल्डर्स रिटर्न्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द efficient utilization of shareholder funds only that company can increase the return on equity. For example, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ अ वेरी लो ग्रोथ रेट स्टॉक, इनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इनका जो ROE है देखिए अबव 80 रहता है कंसिस्टेंटली, तो मार्केट जो इनको पी देता है 70 का। ओके, मार्केट हमेशा इसको पी देता है 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है देखिए, तो ये इस तरह से जो है, इसका मतलब ये नहीं कि HUL आपको 30 के पी पे मिल जाएगा तब आप बाय करेंगे। यू शुड नॉट वेट लाइक दैट। ओके, यू शुड आइदर डू स्टॉक SIP, ओके, और बाय ड्यूरिंग दी एनी फॉल। सो नोट दैट एवरेज ROE ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट इज 16। तो आप तो सोच सकते हैं कि अगर HUL पी 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है तो हाउ मच शेयर होल्डर्स वेल्थ हैज़ बीन क्रिएटेड। फिफ्थ पैरामीटर इज दी ऑपरेटिंग हिस्ट्री। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी मार्केट में क्या होता है, ट्रस्ट का गेम चलता है। देखिए दोस्तों, मार्केट जो है हैविली डिपेंडेंट ऑन ट्रस्ट, बिकॉज इट इज़ एन इमोशनल एनिमल। मार्केट इज एन इमोशनल एनिमल ड्रिवन बाय द इमोशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। सो जिसका लॉन्गर ऑपरेटिंग रिकॉर्ड होगा, ट्रैक रिकॉर्ड होगा जिस कंपनी का, उसको मार्केट हमेशा हायर पी देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एशियन पेंट्स हो गया, HDFC ग्रुप हो गया, MRF हो गया, ये सब शेयर जो होते हैं, आपको कभी भी देखिए दोस्तों, कभी भी कोई मार्केट में क्रैश होता है, फॉल होता है, तो हमेशा इनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि तुरंत जो है बाउंस बैक कर जाते हैं। तो ये इसका ये रीज़न होता है। अब सिक्स्थ पैरामीटर देखिए, डिविडेंड यील्ड। मार्केट को हमेशा ऐसी कंपनियां बहुत पसंद है जो डिविडेंड और कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी देती हैं और ग्रोथ भी है जिनमें। फॉर एग्जांपल TCS, HDFC, ये सब हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, एज वेल एज इनमें ग्रोथ रेट भी है। इनका प्रीमियम जो है हमेशा मार्केट इनको देता रहेगा। बट हाउएवर यू शुड नॉट कंफ्यूज सच कंपनीज, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी PSUs हैं जिनमें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ रेट ही नहीं है। सेवेंथ पैरामीटर होता है दोस्तों देखिए, मैनेजमेंट का पेडिग्री। कंपनीज जिनके मैनेजमेंट एफिशिएंट हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, उनको हमेशा हायर पी मिलेगा। अब इसमें देखिए AMC सेक्टर में दो कंपनी है, HDFC AMC एंड AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। HDFC का इतना ह्यूज मैनेजमेंट लीगेसी है कि इनको जो है हमेशा प्रीमियम मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ग्रोथ। इनका देखिए AB कैपिटल भी उसी सेक्टर में उतनी ग्रोथ है, उतना इनका भी अच्छा है प्रॉफिट, पर HDFC AMC का मैनेजमेंट की वजह से इनको जो है हाई प्रीमियम मिलता है और मिलता रहेगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि देखिए मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो स्टॉक या बिजनेस भी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल TCS हो गया, टाटा स्टील हो गया, इनका दोनों का एक ही मैनेजमेंट है, बट बिकॉज ऑफ साइक्लिकलिटी ऑफ द बिजनेस इन विच टाटा स्टील इज वर्किंग, बिकॉज ऑफ दैट इट विल ऑलवेज ट्रेड एट अ लो PE रेशियो। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज सेक्टर लीडरशिप। सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी या स्टॉक अगर अपने सेक्टर का लीडर है तो उसको दोस्तों हमेशा जो है हायर पी जो है मिलेगा देन रेदर देन इट्स स्मॉलर कंपिटिटर्स। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द कंपनी हैज़ रीच्ड अ क्रिटिकल साइज़, और जो कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका जो है फेल होना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा जो है
फैक्ट है कि अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल TCS और HCL टेक, TCS का फेल होना बहुत मुश्किल है रेदर देन HCL टेक, बिकॉज इट हैज़ रीच्ड अ क्रिटिकल मास। ओके, एक क्रिटिकल मास होता है जो इतने लोगों को एड्रेस कर रहा है एक कंपनी की, उसका फेल होना जो है और एक तरह से इम्पॉसिबल की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट टाइम पे देखिए HUL हो गया आपका वर्सेस ज्योति लैब्स, HDFC बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक। तो इस तरह से आप हर सेक्टर में एक लीडर पाएंगे। तो यही होता है देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा लीडर्स के साथ रहना चाहिए, उसका यही एक रीज़न होता है देखिए, क्योंकि लीडर्स को जो हमेशा बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होने के। नेक्स्ट फैक्टर है देखिए गवर्नमेंट का रेगुलेशंस। ओके, गवर्नमेंट का जो कंपनी है जो बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में डिपेंड करती हैं, उनके रेगुलेशन से टाइट रहते हैं हमेशा, तो उनको मार्केट बहुत हाई पी नहीं दे पाती है। उसका एक रीज़न होता है बिकॉज देर इज़ नो प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स ऑफ सच कंपनीज। ओके, फ्यूचर में कब कौन सी पॉलिसी लग जाए गवर्नमेंट की, तो देर इज प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं है, तो मार्केट उनको जो है कैन नॉट गिव अ सच हाई पी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ग्रो एट स्टडी रेट। ओके, so government companies, for example SBI, ONGC, Coal India, Indian Oil, okay, these are not wealth creator for shareholders because these are focused on public welfare. Similarly, there is one stock called IRCTC. This is a very good stock, but there is only one loophole in this stock, that there is a substantial government stake in this company which acts as an overhang for this stock. देखिए 10th फैक्टर है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि हाई शेयर, जो भी किसी कंपनी के अगर बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेड होते हैं एक दिन में, इसका मतलब है उसमें हाई पब्लिक पार्टिसिपेशन है। एंड सेकंड डेफिनेशन होती है पॉपुलैरिटी की, मैनेजमेंट जो है कंपनी का, इट फ्रिक्वेंटली कंडक्ट्स इन्वेस्टर मीट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज टू कन्वे द फ्यूचर प्लान्स। ओके, सो दिस सच स्टॉक इज कॉल्ड पॉपुलर स्टॉक। सो मार्केट गिव्स हाई पी ऐसे स्टॉक्स को एज या आप कह सकते हैं लिक्विड वर्सेज इलिक्विड। ऐसे स्टॉक्स जो हैं, जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, उनको जो है हाई पी मिलता है बिकॉज दे हैव अ बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड दे हैव लेस ऑपरेटर मैनिपुलेशन। ओके, so or also there is one factor that such stocks they attract the many institutional investors also. For example HDFC group, they are popular, they have steady earnings, hence they are a wealth creators. And likewise if you think about illiquid stocks and penny stocks, they remain cheaper and they remain victim of manipulation because of this reason only. Now 11th factor is very important, debt to equity ratio. This is the most critical parameter in determining the PE ratio of any stock. Debt free companies, they always trade at higher PE because the true value of business is determined by the enterprise value, okay, which is computed by the adding debt to the market cap. So अगर कंपनी के पास हैवी डेट है, फॉर एग्जांपल यूपीएल देखिए अपने सेक्टर का लीडर है मार्केट कैप वाइज एंड सेल्स वाइज, but still it has not been able to reach the all time high levels during all these bull run of last 6 months as compared to इनके जो डेट फ्री कंपटीटर्स हैं, PI इंडस्ट्रीज, रैलिस इंडिया। सो डेट की वजह से यूपीएल देखिए उसका प्राइस और पी रेशियो हमेशा जो है कंट्रोल रहता है। ठीक है, लास्ट फैक्टर है देखिए, इज इट अ बुल मार्केट स्टॉक। ओके, अगर कोई स्टॉक है जो बुल मार्केट का पोस्टर बॉय रह चुका है, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस वाज द पोस्टर बॉय ऑफ द लास्ट बुल रन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो ऐसे केस में दोस्तों फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड, मैनेजमेंट पेडिग्री, ऑपरेटिंग हिस्ट्री, ओके, मार्केट विल ऑलवेज साइडलाइन ऑल दीज फैक्टर्स एंड जो है इट विल फोकस ओनली ऑन दी ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल इन 2000 इन्फोसिस का पी जो है 200 तक चला गया था because market assumed that it will grow at 100% year on year for next several years. So in markets, emotions always supersede the reasons and there is no bigger emotion driver than the prospect of above average period of supernormal growth. And यही एक रीज़न है देखिए, आज के डेट पर डिक्सन हो गया, आपका GMM फॉडलर हो गया, FL हो गया, ये सब देखिए इतने हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स बिजनेसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते। इसीलिए देखिए दोस्तों, मार्केट में इमोशंस हमेशा जो है इनको सुपरसीड कर लेते हैं इनकी एक्चुअल ग्रोथ की। और इसका डैमेज क्या होता है, अगर कंपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाई तो इसका जो फाइनेंशियल डैमेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, और देखिए दोस्तों, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके पी रेशियो के 12 फैक्टर्स हो गए। अब देखिए आप स्क्रीनर पे जाएंगे, आप अगर पी आप सर्च करेंगे जो भी पी कंपनी जो हैवी हाई पी पे ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 25, ओके, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कंपनीज। सो ऑल दीज कंपनीज आई हैव लिस्टेड हियर, दीज आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई पीज। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि दीज आर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड यू शुड वेट फॉर पी टू करेक्ट टू लोअर लेवल। सो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ टाइम में कभी हो भी ना। फॉर एग्जाम्पल they are very quality stocks, for example Hindustan Unilever, Maruti Suzuki, Asian Paints, Nestle India, okay, HDFC Life, Titan, Dabur India, Britannia. So these are very good quality stocks and market is giving them the scarcity premium or growth premium or whatever you can say. I hope you like the video. Okay,
Thanks and subscribe to my channel.